Thank you to all to join this my audio video class in Rapatti. I am Professor Dr. Dayasin Krishna, Rapatti, the Guru Bhajananda College and Hospital, Muzaffarpur. Yesterday, I have been about what are the guidelines of Master Hahnemann in proper case taking of acute and chronic. I think it should be clear. Next, after finishing the case taking, the duty of physician starts. So a physician must have knowledge of his next duty after completing the case taking. Because in case taking there were guidelines by Master Hahnemann: should not disturb patient, should not interfere the patient in his narrating complaint. So as he speak, as we write. But after finishing his complaint, we arrange all symptoms and find out which symptom has been left or incomplete. So next duty of physician, just after finishing the case taking, start to complete the symptom. And so there are some guidelines Master Hahnemann given physician how to complete their symptoms, because it is sole duty of physician that the language of the patient should not be changed. And our duty is to convert the language of patient in the language of repertoire, but without changing meaning. You cannot change the meaning, otherwise case will spoil. So you start, the physician start from first duty. Consider the case taking as a picture of disease. आपने जो केस टेकिंग किया, that is a complete picture of a disease. So picture should be clear. So my duty to find the picture of disease. Second duty, to consider as a guide of the treatment. इसका क्या मतलब? ये तो समझ गए केस टेकिंग पिक्चर ऑफ डिजीज है ना? गाइड क्या ट्रीटमेंट? क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग आप एक फिजिशियन जब केस टेकिंग को पढ़ता है तो ये समझता है कि कैसे हम इलाज शुरू करें, क्या अधिक सफर है, क्या तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि मोर द वाइटल ऑर्गन, मोर द सीवियर कंप्लेन शुड बी कंसिडर फर्स्ट. तो ये चीज़ आपको एक गाइडलाइन गाइड करता है कि आप इलाज कैसे शुरू करें, हाउ यू स्टार्ट ट्रीटमेंट. तो दिस सेकेंड ड्यूटी. एंड थर्ड, to investigate all parts of the body. पूरे बॉडी के हर पार्ट को, स्टार्ट फ्रॉम हेड टू फुट, all organ, all system should inquire properly, because for treatment you must have knowledge of what is to be cured in the disease. तो डिजीज का सोर्स क्या है, डिजीज किसके गड़बड़ी से आया, नेफ्रोलॉजी है, लीवर प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ भी है. तो जब तक आप प्रॉपर एक एक पार्ट को एग्जामिन नहीं करेंगे तो जो पेशेंट सिम्टम दिया है उसको कोरिलेट कैसे करेंगे.
हमको क्या ढूंढना है उसमें? अनकॉमन इन कॉमन। सपोज दैट पेशेंट कहता है अब ड्रॉप्सी का केस है और दैट इज ड्यू टू रेनल फेल्योर। अब रेनल फेल्योर, वन हैव मोर थर्स्ट, वन हैव नो थर्स्ट, स्किन इज ड्राई, स्किन इज मॉइस्ट, वन इज हाईली रेस्टलेस, वन इज नो रेस्टलेस। तो ये जो individual character, it is vary from person to person. There are two symptoms, common symptom of the disease and individual symptom of the patient. पेशेंट का इंडिविजुअल सिम्टम क्या है, इसको कुछ ज़्यादा कंसिडर करना है और उस केस टेक में उसको निकालना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो क्या ड्यूटी कैसे मिलेगा? वी इन्वेस्टिगेट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज डिजॉर्डर, वेयर देयर इज डिजॉर्डर। नेक्स्ट ड्यूटी, टू पिक अप more characteristics symptoms, more characteristic symptoms। केस टेकिंग के बाद अब उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इफ देयर इज हाई फीवर, थर्स्ट इज ए कॉमन, बट ड्यूरिंग हाई फीवर is no thirst at all. This is uncommon characteristics। Some chills, now next, तो ये मैंने क्या किया, among the symptoms which are more characteristics should pick up first। पहला क्या किया कि आप गाइडलाइन ले लिया, सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर लिया। दूसरा क्या है कि सिम्टम को इन्वेस्टिगेशन, क्या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं, पैथोलॉजिकल नहीं, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं, वो जो सिम्टम आ रहा है उस ऑर्गन से कैसे रिलेटेड है ना। तो उसमें जो अनकॉमन मिला उसको देख लीजिए, जो इंडिविजुअल सिम्टम इसको कहते हैं। और समवन सफरिंग फ्रॉम हेडेक, ऑलराइट, ऑल हैव हेडेक, बट सम हेडेक इन राइट साइड, सम हैव हेडेक इन लेफ्ट साइड, सम हेडेक इन वर्टेक्स, सम स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीपुट, सम स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ द आई, सम मोटिलिटी बाय परफ्यूज यूरिनेशन, सम हैव नो एब्लेशन बाय परफ्यूज यूरिनेशन। These are the individual symptom of the patient suffering from disease. So, investigate such symptoms first. Thereafter, then pick up what is characteristics uncommon peculiar among the symptoms. That should be pick up first. All right. And next, to ascertain the symptoms of medicine among the patient symptoms. Very peculiar, very important thing. पेशेंट केस ले लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लिया, उसके बाद क्या, आप अगर ब्रॉडली देखिएगा तो कोई मेडिसिन आपके दिमाग में आएगा, ये ब्राइनिया है, नक्स है, ये सल्फर है, ये ऐसा क्यों होता है?
खास करके वैसे मरीज जाते हैं जो किसी यहाँ से इलाज करा के आपके पास आते हैं. दे हैव abused the drug. They have taken Brania for months. Automatic Brania will prove in the patient. So you will give the symptom Brania. तो ये देख लो कि उसमें कोई मेडिसिन का सिम्टम आ रहा है क्या. इसका मतलब ये देखना होगा कि मेडिसिन हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि मेडिसिन ज़्यादा लिया था. बहुत से मेडिसिन आते हैं तो वो पहले जरूरी है. कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है उसको सर्टेन पता कर लो कि ये ब्रायनिया का सिम्टम बहुत आ रहा है तो क्या ड्रग एब्यूज हुआ. कैसे केस में जो दूसरे यहाँ से इलाज करा के आपके पास आते हैं या बहुत सारे लोग अपने से दवा खाने लगते हैं तो लगातार खा रहे हैं. ऑटोमेटिक होगी ड्रग प्रॉब्लम होगी नहीं होगी होगी. तो नेक्स्ट उसका ड्यूटी होता है हम लोग का टू सर्टेन एनी मेडिसिन सिम्टम्स इन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. ऑलराइट. सो दिस इज फॉर द ये तो हो गया इनका आपके स्टेप. नेक्स्ट ड्यूटी next duty of physician to prescribe medicine. Physician to prescribe medicine on the basis of totality of symptoms or characteristics. टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेके बाद एक मेडिसिन मैंने सिलेक्ट कर दिया. यहाँ काम हो इतना आसान है नहीं है. तो इस टोटलिटी पर आने के लिए हम लोग क्या करना है जो नेक्स्ट में डील करेंगे. एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम. ठीक. थैंक यू.